I request all the audience, well-wishers, parents, teachers and students to kindly rise for our honorable dignitaries. Honorable dignitaries and most valued parents, welcome to and myself Lavish of St. Paul's School Fund. as we open our doors with our open arms, ready to make your visit an unforgettable experience. And keeping this in mind, we are going to present our annual day celebration showcasing the talent of in Oshia, Jodhpur district, Rajasthan. She studied her college and did her LLB and started practicing in Jodhpur High Court. She is a writer as well as poetess. There are a total of 9 books that she had published. She participated in 3 international seminars in Hindi literature. Mrs. Asha Pandey Oza has done many social services under the banner of her organization, Shisu Gandhi Sanstha, and other types of social in New Delhi. At present, she is honored in Jaipur to receive Sahitya Shri Samman 2023 by Balvatika, Bhilwara. अतिथि सत्कार बिना अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। क्या चित्रण करें हम आपका, आप खुद में विश्लेषित हैं। आपके आने से ही यह समारोह सुशोभित है। Today, the task of introducing our guest of honor is a great privilege for me. We are so lucky that he really found a way to be with us. Ligari. Your visit an unforgettable experience. And keeping this in mind, To address you at this important moment for celebrating the annual day for us. A place was born on 6th October 1967 and is a resident of Ajmer. He has accomplished a lot in his life through his hard work and dedication to serve people. In the year 2013, he was promoted from Tehsildar service to Rajasthan Administrative Service. Mr. Jitendra Pandey is currently posted as Additional District Magistrate in Bali. Before this, he was in schedule. He is a living inspiration to the young ones. We are honored to welcome Right Reverend Bishop Dr. Pius Thomas D'Souza. He was born in Agra, Mangalore on 4th of May 1954. He completed his doctorate in canon law from the Pontifical Urban University, Rome.
He was ordained as a priest on 28 March 1982 for the Diocese of Lucknow, UP. He was incardinated to the Diocese of Bareilly, UP on 19 January 1989. He is the current serving bishop of the Roman Catholic Diocese of Ajmer. He is the president of Roman Catholic Diocese in Education Society Ajmer, under which there are many institutions including our St. Paul Senior Secondary School, Falna. He is giving his best to the society, especially in the field of education. He has molded the lives of students and served people with kindness. His contribution in growth of our school is remarkable. क्या तारीफ करें हम आपकी, शब्दावली कम पड़ जाएगी। आपकी उपलब्धि को बताने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। बस इतना कहेंगे, न हर समंदर में मोती सदा खिलते हैं, न हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त भुवन खिल उठता है, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद खिलते हैं। भैया साइड जलाते हैं सम्मान में आपके हम सर झुकाते हैं, सहज लुटाते हैं हम स्नेह और प्यार, स्वीकार करे ये भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार। On behalf of entire Bolayan family, we would like to present bouquets as a token of respect to our esteemed chief guests, Mr. Jitendra Pandey, ADM Bali, Mrs. Asha Pandey Oja, guest of honor, Most Reverend Bishop Dr. Pius Thomas D'Souza, and Manager Most Reverend Father Cancius Liguri. बैकलाइट लगी नहीं है, बैकलाइट की शक्ति है। प्रार्थना प्रधान देव से सीधा संवाद है। प्रार्थना हमारा प्रथम कर्तव्य है और प्रभु का आशीर्वाद ही पुरस्कार है। Ali, Mrs. Asha Pandey Oja, guest of honor, Most Reverend Bishop Dr. Pius Thomas D'Souza, Manager, Most Reverend Father Cancius Liguri, and our Honorable Principal, Most Reverend Father Anthony Davidson, to come forward for lighting of lamp. मिलेगा ना 2 मिनट में प्लस इधर का आता है, 100 में बढ़ा के जोत से जोत सजी सज गया विद्यालय का प्रांगण है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, तालियों की आवाज और अद्भुत झंकारों से करते कार्यक्रम का शुभ आरंभ है। हेलो। Dance is meditation in movement, walking into silence where every movement becomes prayer. With this, I would like to invite St. Paul's Angels for the prayer dance.
जाओ। दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। धरती से अंबर तुम ही तुम, धरती से अंबर तुम ही तुम, रंग रंग में लहराओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। चंद्र की रश्मि, ईश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। चंद्र की रश्मि, ईश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। तुम ही हो प्रभु पुष्प सुगंधम, जिसकी महिमा हर पल होती। अपनी दया से मुझको सजाओ, अपनी दया से मुझको सजाओ। मन का टूटा तार मिलाओ, मुझ में समा के मुझको उठाओ। द्वार खुला है प्रभु बर आओ। कौन बड़ा है तुमसे जगत में, तुम ही तुम ही तुम ही तो मेरे। सरिता पर्वत वृक्ष में हो तुम, तुम ही तुम ही तुम ही तो मेरे। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। To become contributing citizens. To know this session, I would like to call the students of our school to present the annual report. St. Paul's School, Sri Shela Falna is named after its patron, St. Paul. This institution is minority community education institution run by Roman Catholic Diocese Educational Society, Ajmer, Rajasthan, through its member priests. This institution was blessed and inaugurated in 2008 and situated at Sri Shela Falna Bali Road in Rood. It aims at providing quality education that is designed to fit the student for the world of tomorrow, keeping in mind the overall development of every child so that they turn out to be good and upright citizens. For this mission, Falna was chosen and responsibility was given to Father Susai Manikam, Father Samson, Father Augustine Manor,
Father Joseph KJ, Father Jose Matthijs, and at present Father Anthony Davidson. We gratefully remember the support and assistance given by CJ Sisters, Congregation of Jesus. At present, FIH Sisters are rendering their services. An investment in knowledge pays the best interest. There is no doubt that the cost of education is on a rise, but this investment in yourself will pay you back with interest over your entire lifetime. Excellence in academics is the hallmark of any good institution. We proudly announce our result of class 10 previous year 2022-23 was 100%. The students who appeared in the CBSE board examinations were 58, out of which 9 students scored above 90%. The topper was Avni Yadav, who had scored 94.6%. We are really proud of our students as well as our teachers for giving us this splendid result. We conducted our science exhibition during the previous year with a special theme, a science computer craft exhibition, followed by a food fest. On this special occasion, all our parents were invited to experience and to enjoy the ambience of our school environment. Student tours are a crucial component of the academic program because they give students the chance to learn outside of the classroom and get useful practical experience. As the proverb says, I hear and I forgot, I see and remember, I do and I comprehend. And it refers to the idea that seeing something being done in a certain location helps people remember it better. With this, our principal and management had arranged and organized an educational tour for 8 days to Shimla, Manali and Chandigarh. The students of class 9th and 10th enjoyed their memorable excursion. In the year 2022-23, we opened class nursery, and at present year 2023-24, we also started class 11th with the subjects science, maths and biology. Our school participated in artificial intelligence debate competition along with other schools. When it comes to extracurricular activities, many children are getting too much of a good thing. For the primary section, the curricular activities include handwriting competition, storytelling, drawing competition, calligraphy, Antakshari, Hindi and English dictation. Extracurricular activities include Rakhi making, diya and thali making and fancy dress. The inter-house activities gives all the students the opportunity to participate in various games and other activities with the aim of raising self-esteem and developing self-confidence, and give them the opportunities for building leadership and teamwork beyond those which are already available within the school. The curricular activities include Hindi and English debate, science and mathematics quiz, general intelligence quiz and Sudoku competition. Extracurricular activities include patriotic song, Rakhi making, Rangoli making, Christmas tree decoration, Christmas carol singing and bulletin board competition on Independence Day and Christmas Day. The integrity of games is everything. Students of St. Paul's School, Falna are very enthusiastic and vibrant in the field of sports and games. Our school participated in
the 67 district level tournament, and the total participants were 160 students. Position secured by our school. We secured first position in swimming, first position in cricket, third position in table tennis, second position in skating, first and second position in 200-meter racing, first position in shot put. After the tremendous achievements at the district level, 14 students got selected to represent Pali district at state level. We congratulate and appreciate the hard work of students, coach and school PTI for their valuable moments in these fields. The backbone of any school's infrastructure is its classroom. There should be adequate classrooms and it should look pleasant with good paintings and decorations. Our school has been well set up in a suitable atmosphere where a child can easily absorb what is being taught in the school. The ambience should become calm, spacious and with good amenities and utilities in a visually appealing landscape. Nursery playroom has been well equipped with paintings and decorations. Our school playground provides a safe outdoor environment within the school that stimulates children to use their creative energy in healthy interaction with it. The stage has been renovated with paintings and lighting equipments in the present year. Since we started class 11th, school provided maths, chemistry, physics, biology laboratories to facilitate the learning at various student levels. A smart board can enhance learning and it provided teachers with ability to create personalized learning. So to prove this, we have LED panels and smart boards in the classroom. The school was reopened this year. The selection of head boy, head girl, captains, vice captains and monitors were also selected. The official investiture ceremony took place and was held in school auditorium. Change is the end result of all through learning. Children that engage in extracurricular activities develop their social skills and discover how to work together to achieve a common goal. One important life lesson that extracurricular activities provide is time management. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. The best teacher teaches from heart, not from books. Teachers are also learners. Staying updated is the key of success in any field, and especially in the field of education. Our teachers constantly strive updated, for which they had 5-day seminar, had conducted 25 hours capacity building training as per the CBSE guidelines and NEP 2020. The topics were given as follows: classroom management, adolescent education, value education, inclusion and inclusive strategies, life skill, stress management, emotional intelligence, and effective communication. We sincerely thank the entire team of students who had presented the annual report. Thank you. I heartily welcome you all on behalf of St. Paul School, Falna, for this prestigious occasion of our annual day celebration. It is not easy to believe that what was once dreamt is being fulfilled. The idea of putting the foundation of an educational institution is inspiring.
Taking our evening further, I, on behalf of everyone here, heartily welcome our chief guest. We are incredibly thankful to you to grace the invitation to be our chief guest for tonight's event. Now, I humbly request our chief guest, Mr. Jitendra Pandey, to come on the stage as we all are eagerly waiting to listen to your inspiring thoughts. Respected guests, Father Bishop, फादर सुसाई, स्थानीय विद्यालय के फादर, समस्त अध्यापकगण, उपस्थित सभी बच्चों के संरक्षकगण, लेडीज एंड जेंट्स और प्यारे बच्चों, किसी भी विद्यालय के लिए एनुअल फंक्शन का दिन एक महत्वपूर्ण दिन होता है। वर्ष पर्यंत बच्चे उसकी तैयारी करते हैं और अपनी और विद्यालय की परफॉर्मेंस उस दिन सबके सामने रखते हैं। जैसा कार्यक्रम चल रहा है उस हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि सेंट पॉल स्कूल फालना अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यालय के लिए अपना 100% दे रहा है। बच्चों की जैसी प्रस्तुतियां अभी तक हो रही है उसको देखते हुए 100 में से 100 मार्क्स बच्चों को और तैयारी करवाने वाले सभी टीचर्स को मैं देता हूं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज एनुअल फंक्शन की जो थीम रखी है, आशा जीवन की परिभाषा, तो बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है। मेरे को मेरे बचपन में मेरे पिता और मेरे गुरुजन, टीचर्स वगैरह कईयों से मैंने ये सुना था कि जीवन के 25 वर्ष, प्रारंभिक 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस उम्र तक जो मेहनत करता है, बाकी के समय में वो अपने जीवन को बहुत सफलतापूर्वक व्यतीत करता है। तो बच्चों के लिए यही एक संदेश है कि ये समय है अपने कठिन परिश्रम का, अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान देने का, तभी वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अपने माता पिता का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दूसरी बात, आज चूँकि पेरेंट्स काफ़ी यहाँ पर उपस्थित है, तो पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि समय काफ़ी परिवर्तित हो गया है। तो बच्चे वैसे भी 10th के बाद में या 12th के बाद में दूर चले जाते हैं, तो बच्चों को साथ में रखें। पारिवारिक संस्कार उनको मिलने चाहिए। अपने संस्कारों के साथ में पारिवारिक महत्व को समझते हुए वो शिक्षा ग्रहण करें और उनकी शिक्षा पे भी पूरा ध्यान दें ताकि वो जीवन में सफल हो सके। बच्चों के शिक्षा के में स्कूल के साथ में, उनके टीचर्स के साथ में उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स जितना बच्चों के साथ में अपने स्नेह के साथ में जो चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं वो जीवन में उनके हमेशा काम आती है। आज इस अवसर पर, वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, सम्मानित किया, उसके लिए मैं विद्यालय परिवार का आभारी हूँ और विद्यालय और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। I request the chief guest to remain on the stage so that we can honor you with a memento as a की शान है। विद्यालय उत्सव की शोभा को रंजित करने रंगारंग प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं विद्यालय के राजस्थानी छात्र
I would like to call our students for the Rajasthani dance. मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर की ठोकरो आयु रे बढ़ के मारो मेहमान, अरे घर की ठोकरो आयु रे बढ़ के मारो मेहमान। सम्मानित बिशप सर, सम्मानित फादर, सम्मानित प्रिंसिपल सर, सम्मानित समस्त अध्यापकगण और सामने विराजमान बाली, फालना और आसपास के समस्त कस्बों के जितने भी परिजन हैं, आप सभी को नमन करती हूँ और प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्नेह और बहुत सारा प्यार और अपना आशीर्वाद इस मंच से देना चाहती हूँ। निश्चित रूप से जितनी भी उनकी प्रस्तुतियाँ देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, उनका जो संचालन देख रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं, अपने दिन याद आते हैं। कितने घबरा जाते थे हम लोग जब इस तरह मंच पर आना होता था, और आज बच्चों को जब देखते हैं तो लगता है कि बहुत बहुत आगे बढ़ गए हैं बच्चे, और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ चुका है। और ये गर्व की बात है, क्योंकि धीरे धीरे समय विकट होता जा रहा है, बहुत मेहनत मांग रहा है समय, उतना आसान नहीं रहा जितना आसान हमारे समय था। यही कॉन्फिडेंस लेवल की, इसी आशा और इसी विश्वास की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, जो निश्चित रूप से बच्चों में दिखाई दे रहा है। और बच्चों में दिखाई दे रहा है तो पीछे पूरी स्कूल की मेहनत, सभी टीचर्स की मेहनत और उनके माता पिता की मेहनत नज़र आती है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, आप सभी के लिए एक बार तालियां। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ संस्कार, सांस्कृतिक गतिविधियां और खेल-कूद, हर तरह की प्रतियोगिता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
आज हम जहाँ बाली से उठते हैं, निश्चित रूप से हमें बहुत आगे बढ़ना है। इन्हीं में से कोई बच्चे IAS ऑफिसर बनेंगे, कोई प्रशासन में जाएंगे, तो कोई बच्चे पुलिस में जाएंगे, कोई निश्चित रूप से प्रोफेसर बनेंगे, कोई शिक्षक बनेंगे, कई विद्यार्थी CA या इंजीनियरिंग करके भारत के बाहर भी जाएंगे। ये विद्यालय जिस तरह बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य उज्जवल नज़र आता है। और बच्चों को जिस तरह मैं देख रही हूँ कि वो कितना धैर्य के साथ, कितने समय से, कितने समन्वय के साथ में ये सारा कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया होगा, शिक्षक ने मिलके बच्चों के साथ, बच्चों ने कितना समय दिया होगा और उनके पेरेंट्स ने कितना समय दिया होगा। अपने दिन भी याद आते हैं और मन करता है कि हम भी काश अभी तक बच्चे बने रहते तो इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारी भी कहीं ना कहीं भागीदारी होती। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, मन मोह लिया है निश्चित रूप से। और मैं एक और निवेदन यहाँ से करना चाहती हूँ इस मंच से, स्कूल के इस पुनीत प्रांगण से, कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। आज भी गाँव में कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी संस्था महिला शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या के लिए बहुत काम करती रही है पिछले 20 सालों से, तो एक निवेदन और एक मेरी प्रार्थना जरूर रहेगी कि भूल कर भी अब कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध ना हो, क्योंकि इतने सारे अभिभावकगण पीछे बैठे तो निश्चित रूप से ये बात बहुत दूर तक जाएगी। और स्कूल से, विद्यालय प्रांगण से कोई ऐसा बढ़कर मंच नहीं हो सकता जहाँ से ये बात कही जाए। विद्यार्थी हैं, सबसे अच्छे नागरिक बनने वाले इस देश के भविष्य में भी, तो निश्चित रूप से आप मेरी बात का ध्यान जरूर दें और कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध पर रोक लगे, यहाँ से प्रण लेकर आगे निकले। और महिला शिक्षा पर, एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, इस बात पर भी जरूर ध्यान दें। तो लड़की को पढ़ने से नहीं रोकें, किसी भी सूरत पर नहीं रोकें। आपके पास आप बहुत भाग्यशाली हैं कि बाली जैसी छोटी स्कूल्स में भी आपको इतने अच्छे विद्यालय मिल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेंट पॉल जैसे विद्यालय आपके पास हैं, आपको बहुत मेहनत भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हम लोगों को बाहर भी रख कर पढ़ाना पड़ा पेरेंट्स को। जब हम छोटे गाँव में थे तो ओसिया में थे, हमें जोधपुर रहकर भी पढ़ना पड़ा। आप ध्यान दीजिए, शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान देने का मैं आग्रह करूँगी आप सभी लोगों से। और मैं चाहूँगी कि इस विद्यालय के बच्चे इतनी मेहनत करें कि आगे जब कभी मुझे इस प्रांगण में आने का अवसर मिले तो मुझे पता चले कि बहुत सारे बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में गए, इंजीनियरिंग में गए हैं और CA बने और देश की बड़ी से बड़ी संस्थान से जुड़ चुके हैं बच्चे। इतनी मेहनत कीजिए। जैसा कि ADM साहब ने बताया कि 25 साल होते हैं ज़िंदगी के, जो देने ज़रूरी होते हैं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है यह समय। इसमें अगर आपने मेहनत लगा दी, पूरा अपना दम लगा दिया, पूरी अपनी आशा और विश्वास लगा दिया, तो निश्चित रूप से आपकी जीत तय है, कोई आपको हरा नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से कोई उछालो यारों। तो ये पत्थर तबीयत से उछालने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ। और मैं जब तक यहाँ बाली में हूँ तो साहित्य से लेके बच्चों के लेखन से लेकर, अगर आप लेखन से जोड़ना चाहते हैं बच्चों को तो निश्चित रूप से मेरे से मिलिए। मैं उनमें चाहती हूँ कि वो भी स्किल जरूर डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। समंदर के सामने कतरे को खड़ा कर दिया, हौसला मेरा छोटा था उसे बड़ा कर दिया। आपके प्यार मोहब्बत का शुक्रिया कैसे अदा करूँ, हमने थोड़ा सोचा आपने बड़ा चढ़ा कर दिया। आभार, धन्यवाद। I request the chief guest to remain on the stage so that we can honor you with the memento as a token of love and respect on behalf of St. Paul School, Falna. विद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य कृतज्ञता सूचक है।
is a day of celebration, a day to acknowledge the hard work and dedication of our respected principal. This year has been an exceptional one for our school, and we have achieved many milestones together. From sports achievement to academic success, we have accomplished so much and made our school proud. Thank you, dear Father, for making decisions for our well-being as your top priority. Your hard work is the foundation for our achievement, but you handle it with grace and enthusiasm. We can't wait to see what else you have in store of your ideas for our school. Once again, thank you, dear Father. As we all express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not the utter words, but to live by them. As we all know that saying thank you is a respectful way to show appreciation towards a person. With this, I would like to call our respected principal to propose a vote of thanks. Additional District Magistrate Bali, Mrs. Asha Pandey Oja, Guest of Honor, Right Reverend Dr. Pius Thomas D'Souza, Bishop of Ajmer, fathers, sisters, distinguished guests, and parents. Good evening. It is with immense pleasure and gratitude that I stand before you today to extend my sincere thanks for gracing this occasion with your presence. The theme of our annual function, Asha Jeevan Ki Ek Paribhasha, beautifully encapsulates the essence of the transformative journey we aim to embark upon today. A journey towards defining life through hope and empowerment, particularly emphasizing the empowerment of women. First and foremost, I thank God for His blessings and graces on our school and especially on जो कन्या का जन्म लक्ष्मी और सरस्वती अवतरण के रूप में मानते हैं। पूजनीय है वे माता पिता जो बेटी के जन्म से कन्यादान तक का सफर संरक्षित करते हैं। प्यार और त्याग की मूर्त है बेटी, देश की बेटियों का सहारा है बेटी। सपनों को उड़ान भरने दे, बेटी को आगे बढ़ने दे। कुछ खो जाने पर जब मन को निराशा है, खुशियों की धूप में वो औषधि आशा है। प्रतिभाओं का होता इसमें सम्मान है, संस्कृति की भी होती इसमें पूर्ण पहचान है। एक नई सोच का ये आरंभ है, आज के कार्यक्रम का ये प्रारंभ है। We have always held to the hope, belief and conviction that there is a better life, a better world beyond the horizon. मार्च में मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा,
छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। छोटा सा गांव था जिसमें आशा का जन्म हुआ। आशा के परिवार में आशा और उसके माता पिता रहते थे। चारों तरफ हरियाली युक्त ये गांव अत्यधिक सुंदर एवं मनमोहक था। गांव के सारे लोग और परिवार एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते थे। आशा को उसके मोहल्ले के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही आशा का जीवन प्यार दुलार से बढ़ता गया। आशा बेटी इधर आओ। आई पापा। आशा मेरी बेटी मेरा सहारा बनेगी। पापा कुछ दिनों बाद मेरी परीक्षा आ रही है। हाँ बेटा, मन लगाकर पढ़ना और हमारा नाम रोशन करना। हाँ पापा, मुझे और किताबें चाहिए। जरूर दिलाएंगे बेटा, तुम खूब पढ़ो। हाँ माँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हमारी आशा बहुत होशियार है, वह बहुत आगे बढ़ी। दिलाओगे ना? क्यों नहीं बेटा, जरूर दिलाएंगे। मेरी प्यारी आशा, लाडो खूब पढ़ लिख कर हमेशा खुश रहो। चलो बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। हाँ माँ, बस अभी आई। ए मंजू, चल रे, स्कूल चलते हैं। हाँ आ रही हूँ, थोड़ी देर रुक। ले आ गई, इतनी भी क्या जल्दी है स्कूल जाने की? मैं भी आ गई, चलो अब चलते हैं। से होता है स्कूल।
उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। चमक चमक के तारे, कैसा है तू प्यारे, दुनिया में तू चमके जैसे चमके तारे। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। सबके सहारे, सबकी आंखों के तारे, तेरे ही दम से दुनिया रोशन है प्यारे। तू मेरा जीवन, तू मेरा कल है प्यारे। अब तो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। हमने पढ़ जो लिया है काम पूरा किया है, अम्मी बाबा को खुश कर दिया है। बाजी वाह किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। माँ मैं आ गई स्कूल से। हाँ बेटा, चलो अब थोड़ी देर आराम करो, फिर उठकर पढ़ाई करना। हाँ माँ, अभी मेरी परीक्षा चल रही है, पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी। हेलो। हेलो माँ, कैसी हो आप? बहू मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम दोनों यहाँ गाँव आ सकते हो कुछ दिनों के लिए? क्या हुआ माँ आपको? बहू शरीर में कमजोरी आ गई है और बुखार भी तेज है। हाँ माँ आप चिंता मत करो, हम दोनों आज ही आ जाते हैं। ठीक है बेटा। आप दोनों आशा का ध्यान रखना। हाँ उसकी परीक्षा चल रही है और अभी हमें गांव जाना है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? माँ की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए गांव जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग हैं ना, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। मंजू सुनो ना दोनों। क्या है आशा, पढ़ाई नहीं करनी, परीक्षा है। तू तो होशियार है, बिना पढ़े ही पास हो जाएगी, हमारा क्या होगा? छोड़ना, क्या तुम भी थोड़ी देर खेल लेंगे, मजे कर लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा। मेरे माँ पापा घर नहीं है, गांव गए हैं, तुम दोनों आ जाओ। What's up?
दीवानी दिल की रानी कब से अनजानी अब तक तुम्ही को करती हूँ जो है ठानी चले जैसे हवाएं सनम सनम उड़े जैसे परिंदे गगन गगन What's up? Say what? कोई रोके कोई आए जितना भी मुझको समझाए मैं न सुनूंगी कभी अपनी ही धुन में रहती मैं पगली हूँ मैं जिंदगी कहते हैं ये तो सभी कोई नहीं जाना के अरमान क्या है मेरा चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन चाहे तितलियां जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन हे 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 वो हे हे ओ मैं दीवानी दिल की रानी कब से अनजानी कब तक तुम्ही को करती हूँ जो है ठानी चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन दरवाजा खोलो बेटा। आई काकी। लो बेटा नाश्ता कर लो। क्या हुआ बेटा, उदास हो? माँ पापा की याद आ रही है क्या? हाँ काका। कोई ना, मन न लगे तो हमारे घर आ जाना। जी काका। मैं तो तुम्हारा अपना ही तो हूँ, क्यों आशा? आशा के माँ पिताजी को दादी के घर गए 5 दिन हो जाते हैं। आशा अकेले ही अपने घर पर रहती है और अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई करती रहती है। रमेश काका और उसकी पत्नी का आशा के घर आना जाना लगा रहता है और इसी बीच रमेश काका के मन में आशा के प्रति गलत भावना जागृत होने लगती है। आशा बेटा दरवाजा खोलो। क्या हुआ काका? कुछ नहीं, बस तुम अकेली थी तो सोचा तुमसे बातें कर लूं। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई कुछ यारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों है री तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर है खुदा तू गुम है कहाँ रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर है खुदा तू गुम है कहाँ क्या रीत चल पड़ी है क्या आग जल पड़ी है क्यों चीखता है सुरमई धुआं क्या रीत चल पड़ी है क्या आग जल पड़ी है क्यों चीखता है सुरमई धुआं
आई, उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है री। पंखड़ी की बेटी है कंकरों पे लेटी है, बारिशें हैं तेजाब की, ना ये उठ के चलती है ना चिता में जलती है, लाश है ये किस ख्वाब की। रातों में पल रही है सड़कों पे चल रही है, क्यों बाल खोले दहशतें यहाँ। रातों में पल रही है सड़कों पे चल रही है, क्यों बाल खोले दहशतें यहाँ। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ वो रमेश काका। क्या रमेश काका, जल्दी बोलना। जब आप और बापू दादी के घर गए हुए थे तो रमेश काका घर आते थे। हाँ, तो क्या हुआ? हमें उन्हें बोलकर गए थे ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके। एक वही तो इस गांव में अपने कहने को है। नहीं आशा, किसी को ये बात न बताना बेटा, हमारी बदनामी होगी। तू लड़की है, सब तुझे ही गंदी नजरों से देखेंगे। पर मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है? तू चुप रह, आज ही तुझे तेरी नानी के घर भेज देते हैं। पर माँ मेरी पढ़ाई, पर माँ मेरी पढ़ाई। जीना जीना उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा।
जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अचानक तुम मेरे पास क्यों आ गई? अरे नानी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अकेली रहती है, बीमार रहती है, तो माँ को तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी और मैं माँ को चिंता में नहीं देख सकती, तो मैंने ही कहा मैं नानी के पास चली जाती हूँ। पर तेरी पढ़ाई, तेरी माँ भी फिर जिद्दी है। कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, पर कहना मानती ही नहीं। अरे नानी, पढ़ाई का क्या है, वो तो यहाँ भी हो सकती है। ठीक है आशा बेटा, मैं तेरा दाखिला 2-3 दिन में सरकारी स्कूल में ही करवा देती हूँ। तू खूब पढ़, अपने सपने पूरे कर। मैं क्या करूँ कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसे भूल पाऊँ? मैं क्या करूँ कि मैं आगे बढ़ सकूँ? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? आज तक मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मैं अब आगे से कुछ भी सहन नहीं करूंगी। अब मैं ही अपना जीवन बनाऊंगी। मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी। हाँ आशा, तुम कर सकती हो। कुछ नहीं हो सकता है तुमसे, क्योंकि तुम एक लड़की हो। हिम्मत रखो आशा, हौसला बुलंद हो तो कुछ भी हो सकता है। आशा और नानी एक दूसरे का सहारा बन जिंदगी बिताने लगते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। आशा अब कॉलेज में पढ़ने लगती है। सर, जब संविधान में पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता की बात लिखी गई है, तो फिर हम लड़कियां इससे वंचित क्यों है? क्यों हमें लड़कों से कम समझा जाता है? क्या हम इस देश का भविष्य नहीं बदल सकते? क्यों नहीं आशा, बिल्कुल बदल सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सुनो दोस्तों, आज ये लड़की सर से समानता की बात कर रही थी। चलो इसको समानता का पाठ पढ़ाते हैं। ये देखो भारत की महिलाएं, चलिए देश का भविष्य बदलने। ये क्या भविष्य बदलेंगी? इनका भविष्य तो पहले से ही निश्चित है। अरे हाँ, समानता की बात कर रही थी, जबकि इनको तो बस शादी करके घर का चूल्हा चौका करना है और हम पढ़ाई करके अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे और खूब मजे करेंगे। अरे पहले खुद का भविष्य तो बदलो, फिर बदलना देश का। हम लड़कियां देश को क्यों नहीं संभाल सकती? जब हम घर संभाल सकती है, तो देश को क्यों नहीं संभाल सकती? शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तो मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी।
चलूंगी, कैंडल चला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। मर्दों वाली बात कह के मुझे भेड़ समझ के बेचोगे, उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है, काली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको न छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को न छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नानी, हमारे समाज की सोच कब बदलेगी? क्या हुआ बेटा? नानी, अभी भी लोग यह समझते हैं कि लड़कियों का काम चूल्हा चौका करना और घर की देखरेख करना ही है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं बेटा, यह समाज बदल सकता है जब तुम जैसी लड़कियां खूब पढ़ेगी और पढ़ लिख कर देश के ऊंचे पद और स्थान को हासिल करेगी। तभी इस संसार को नारी शक्ति की ताकत का अनुमान होगा। आप ठीक कहती हो नानी। अब मैं पढ़ लिख कर समाज में परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करूंगी।
जग जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे। ला 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 ला। सपने रे सपने रे सपने मेरे ला 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 ला। नानी, नानी, मैं आईपीएस की परीक्षा में पास हो गई। बस नानी, अब मैं सिर्फ इंटरव्यू में पास हो जाऊं। बहुत बढ़िया बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पास हो जाओगी। आइए, बैठिए। तो आशा, आप ये बताइए, आप आईपीएस क्यों बनना चाहती है? मैं आईपीएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ और इस देश की हर एक नारी, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बहन हो, उनको खुलकर जीने की एक आशा एवं उमंग देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ हर एक अपराधी को उसके अपराध की सजा मिले, जिससे कि इस समाज की हर एक नारी अपना जीवन एक नई सोच एवं आशा के साथ जी सके। मैं आशा जीवन की एक परिभाषा देना चाहती हूँ। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे,
वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। जो आग और बर्फ दोनों साथ लेके चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है, जो एक पल में अग्नि है, जो एक पल में नीर है, जो पत्थरों की स्याही से खींची हुई लकीर है। वो आ गई जो जिद पे दो नली का रुख भी मोड़ेगी, जो ले लिया है एक बार प्रण वो करके छोड़ेगी, लाख उसके इम्तिहान ले कोई भी डगर। न दर्द की उसे फिकर, न चोट का ही